Assalamualaikum friends, how are you all? I hope you all are doing good. This is me, Saida Harim. Today we are going to study Introduction to Communication or Communication Skills. I am giving you a short introduction today in this lecture because this is your first class, this is your first lecture with me. So let's get started. What is communication? Communication is basically interaction. And what are the skills? Skills are abilities. So, collectively, we can say that communication skills are the abilities to interact. अब communication अगर बातचीत है तो बातचीत दो लोगों के दरमियान हो सकती है, दो ग्रुप्स के दरमियान हो सकती है, दो फैमिलीज के दरमियान हो सकती है, इनफैक्ट दो कंट्रीज के दरमियान हो सकती है. So, here is another important question that why we do communicate. Whenever we want to share our ideas, our message, our concepts, our thoughts, we do communicate. जब भी किसी इंसान ने अपना मैसेज कन्वे करना होता है तो वो क्या करता है, वो कम्युनिकेट करता है. कम्युनिकेशन के थ्रू वो अपना मैसेज कन्वे कर सकता है, अपनी बात समझा सकता है, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ कर सकता है. अब कम्युनिकेशन करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो सेंडर है एंड रिसीवर है, या ऐसे कह लें जो स्पीकर है एंड जो लिसनर है, वो दोनों एक्टिव हो, दोनों विलिंग हो कम्युनिकेट करने के लिए. इफ़ अगर लिसनर और सेंडर दोनों में से कोई एक मेंबर भी विलिंग नहीं है सुनने के लिए या बोलने के लिए, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती, उसके रिजल्ट्स भी फिर ज़ीरो ही होंगे. सो फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन the speaker and the listener should be active and willing to communicate. Now let's move towards. There are two ways to communicate. First one is verbal communication and the second one is non-verbal communication. In verbal communication, we use particular language, words, or any dialect of any language. And in non-verbal communication, we don't choose any language, words, or dialect of any language. In simple words, we can say that in verbal communication, we speak. Like I am doing right now, I am giving lecture by speaking, and this is the example of verbal communication. And in non-verbal communication, simply we don't speak. In non-verbal communication, you consider your body language, facial expression, certain colors are the non-verbal communications, like white is the sign of peace and the red is the sign of love. These are the examples of non-verbal communication. Now moving towards, there are two types of communication. First one is formal communication and the second one is informal communication. In formal communication, we have certain boundaries, limits, and we are bound to obey that certain boundaries or limits in communication. जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं फॉर्मली, आपको ख्याल रखना होता है डेक्रम का, आपको ख्याल रखना होता है सराउंडिंग्स का, आपको ख्याल रखना होता है कि कम्युनिकेशन करते वक्त आप कोई भी स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करें. इनफैक्ट सोशल नेम वर्ड्स का इस्तेमाल भी फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं होता. अब फॉर्मल कम्युनिकेशन आप किस किस के साथ करते हैं? आप फॉर्मल कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, अपने टीचर्स के साथ करते हैं, अपने बॉस के साथ करते हैं. वेन एवर यू आर डूइंग अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, यू हैव टू ओबे द लिमिट्स इन द डेक्रम ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन. और नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप सर्टेन लैंग्वेज, यानी कि आप किसी भी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं. स्लैंग भी आप यूज़ करते हैं. जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में लिमिट्स नहीं होती, बाउंड्रीज नहीं होती, आप फ्रैंकली किसी से भी कोई भी बात कर सकते हैं, इन if in case that person knows you or you know them. And business communication is the most common example of formal communication.
बिजनेस कम्युनिकेशन की हर मीटिंग, हर बातचीत फॉर्मली होती है, उसको कंडक्ट कराया जाता है फॉर्मल वे में। उसमें सर्टेन आपका ड्रेस कोड होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है, और वो फॉर्मली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है उन मीटिंग्स के लिए। एंड इन बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी के मुताबिक है कम्युनिकेशन। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकती या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकती, तो वो अपने सर्टेन गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन एक एसेंशियल पार्ट है। विदाउट कम्युनिकेट दे कैन नॉट अचीव देयर गोल्स।